Assalamu alaikum students. I hope you all would be doing well. Today we are going to talk about the lecture of English composition and comprehension writing skills, and our topic is expansion of passages. What does mean by expansion and what does mean by passage? What is expansion? Expansion is when a writer adds more specific details, explores the effects of a certain premises, or provides context to particular situation in order to create a rounder word for the reader. Basically, expansion means to enlarge something, to enhance something, to wider something, to add additional information into something. Okay, in compositional context we can say that we add in a passage more details in the form of example, elaboration, or it can also contain statics or other type of expanding details that which will achieve the effect of expansion. ठीक है, एक्सपेंशन क्या करते हैं, आपके वर्क को, आपके पैसेज को, आपके सेंटेंसेस को, आपके पैराग्राफ्स को इनलार्ज करता है। मीन टू से वो उनमें एडिशनल डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इन ग्रामेटिकल और यू कैन से फंक्शनल इंग्लिश you will see that we are having two type of categories. One is precis writing that concise the English. You will see that we are having two type of categories. One is precis writing that concise the thing. On the other hand, we have expanding writing that will enlarge or exemplify or explains or elaborate the things. Then there a question arises that why do we expand sentences, do we feel the need of expanding sentences? So the primary purpose of using sentence expanding exercises in composition is to enrich a student's thinking and attain attention to detail in storytelling while heightening his or her awareness of the variety of available sentence structures. Okay, इससे क्या फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द क्रिएटिव माइंड, जिससे वो एक छोटी सी चीज़ को एक्सपेंड करके स्टोरी टेलिंग में लेके जा सकते हैं, उसमें एडिशनल डाटा ऐड कर सकते हैं, नॉट ऑफ देयर ओन चॉइस बट रिगार्डिंग और रिलेटेड टू द वेरी कॉन्टेक्स्ट और द सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, देन द आइडिया वुड बी मोर क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो समझने वाली बात है वो आप ये ध्यान में रखो कि वर्ड इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स टू एनलार्ज और इन्हेंस योर टेक्स्ट। ठीक है, आपको जो भी पैराग्राफ दिया है आपने उसको एक्सपेंड करना है, उसमें डिटेल्स डाल के आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स दे के आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वन वे और द अदर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर है ना, मेन क्रक्स है या मेन आइडिया है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, now see, expansion of passages is just the opposite of precis writing. As I already talked about precis writing. Precis writing में क्या करते हो आप, you delimited the thing, delimitize them, you concise the things, but in expansion you go opposite of the precis writing by adding details to the very text. Okay, whereas here we have to expand a sentence or a short passage has to be expanded into a paragraph by adding examples, details, proofs to a simple statement. ठीक है, अभी ये बात मैंने पहले भी की है कि एक्सपेंशन क्या है, कि हमने एक लाइन हमारे पास है, एक सेंटेंस है हमारे पास, या हमारे पास पैराग्राफ है, हमने उसको एलैबोरेट करके इतना उसको वेटी बना देना है और इतना उसको जो है वो कि उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो वो, लेकिन क्वांटिटेटिव हो जाए, उसकी मिकदार बढ़ जाए। किस तरीके से कि एग्जांपल के थ्रू डिटेल्स दे के, प्रूफ्स दे के, सिंपल स्टेट्समेंट को हमने एलैबोरेट कर देना है, उनको मज़ीद एक्सप्लेन कर देना है। जनरली 8 to 100 वर्ड्स शुड बी एम्ड एट। हमारा पर्पज़ क्या होता है, एक पैराग्राफ को अगर हमने इन्हांस करना तो वो हमारा पर्पज़ होता है मैक्सिमम 8 to 100 वर्ड्स हम जो हैं वो एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, there are some procedures for converting your simple statements into expansion by reading the original sentence or passage carefully. Passage means your paragraph. Paragraph is a group of sentences that are related to the single topic you have read it about in your subject as well. तो अब आपने देखा कि how from a single sentence or a two word self confidence to
you can say it a phrase. From a phrase we have made a full paragraph that is highlighting the main idea of the very sentence that has been taken as an example. ठीक है, now we are having another example. Peace had her victories no less renowned than war. इसको भी आपकी एग्जाम्पल को दिया गया ताकि आप आइडिया को समझ सकें. अभी आप खुद से एक दफ़ा इसको पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, इसको एक दफ़ा रीडिंग दें, देन यू विल बी एबल टू गेट द idea. Now there are some proverbs that can be converted into paragraphs or into an essay as well. You can expand these ideas into various essays or various paragraphs. वो हर एक फील्ड में डिफरेंटली जो है टैलेंटेड होते हैं, बट होता क्या है उनके साथ, एंड येट हु नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग, लेकिन कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर पाते, कुछ भी गेन नहीं कर पाते, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते. क्यों? दे आर अफ्रेड टू मेक द फर्स्ट रिस्क. क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है. वो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वट वी आर गोइंग टू बी थिंक अबाउट बाय पीपल, वट विल बी द आउटकम, वट विल बी द कंक्लूजन, सोल्यूशन. वो सारा कुछ उनके माइंड में इतना हौच पौच बन जाती हैं दैट दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. ओके, फिर क्या होता है, एंड इन दिस वे गुड एंड यूजफुल थिंग्स आर लॉस्ट इन द टू द वर्ल्ड. फिर जो आप में टैलेंट है भी है, जो आप कर भी सकते हो, वो कहाँ कहीं खो जाता है क्योंकि आपको करेज ही नहीं किसी ने किया होता. अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस. इसलिए आपके पास जो भी टैलेंट है, उसके टैलेंट होने के बाद आप में वो कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए डिस्प्ले करने का. फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास देयर आर सो मैनी पीपल हु नो and who understand English, and they know the grammar, they know the structure, but they are unable to speak just because of the fear. If you will never overcome that fear, you are not going to get सक्सेस इन योर लाइफ. सो हमें ये चीज़ सिखाती है, ये एक स्टेटमेंट ने हमें सिखाया कि हमें जो है लाइफ में थोड़े से अगर हमें करेज मिल जाए और पावर मिल जाए थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अचीव बेटर थिंग्स इन आवर लाइफ. अब हमने जब भी अपनी एक्सपेंशन करनी है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है ओरिजिनल टेक्स्ट को, ओरिजिनल सेंटेंस को. देन करें स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट बाय एडिंग इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल, डिटेल, प्रूफ्स until a paragraph is made which can very well be called a tiny essay. एक पैराग्राफ एक छोटा सा ऐसे बन जाएगा, टाइनी सा ऐसे बन जाएगा आपका. ठीक है, the expansion must contain all that was included in the original passage. More can be added as long as it is strictly relevant to the subject. आपने एक सेंटेंस लिया और अब उसमें आपने उसको एलैबोरेट कर रहे हैं, आप उस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसको आप फॉर एग्जांपल हम कहते थे ना तशरीह करें. हम चार हमारे पास लफ्ज़ हैं, चार लाइनें हैं हमारे पास सेंटेंस, एक सेंटेंजा है, उसको हम एलैबोरेट करें, उसको एक्सप्लेन करें, तो हम बड़ी उसको डीपली जो है एनालाइज करते हैं और हर चीज़ को डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, तो इसमें भी हमने यही चीज़ देखनी है. उसके बाद क्या है, द सेंटेंसेस फॉर एक्सपेंशन इज़ अ कंक्लूजन. फाइंड आउट द स्टेप बाय विच द कंक्लूजन और थॉट हैज़ बीन अराइव्ड एट. जब आपने एक पैराग्राफ ले लिया, सेंटेंस ले लिया, आप उसने पढ़ना स्टार्ट किया आपने उसको, तो उसमें आपने कंक्लूजन भी तो देना है ना. तो उसको कंक्लूजन को भी आपने उस सोच को अपने माइंड में रख के पूरे अपने पैसेज को आपने एक्सप्लेन करना है. फिफ्थ जो मेथड है वो आपका स्टेप है मेथड का, वो ये है, इफ़ द सेंटेंस फॉर एक्सपेंशन इज़ अ मेटाफोर, एक्सप्लेन इट्स फुल मीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज एंड गिव रीजंस टू स्पॉट इट. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मेटाफोर, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट इज़ मेटाफोर एंड सिम्बली. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई से ही इज़ अ लायन, सो इट्स अ मेटाफोर. आई एम रेफरिंग टू अ पर्सन हु हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ लायन. सो अगर आपको लगता है कि आपके पैराग्राफ में, आपके सेंटेंस में कहीं कहीं जो है वो मेटाफर है या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं जो अपेरेंटली कोई और मीनिंग दे रही हैं, बट उनके जो हिडन मीनिंग है वो कुछ और है, देन यू आर बाउंड और यू आर सपोज टू explain those things in a simple words. Sixth step is your expansion should be written in such a way that is alone becomes a complete piece of composition. इस तरह लिखना है कि वो आपकी कंपोजिशन का पार्ट लगे, ये ना हो कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर रही, इनका लिंक नहीं बन रहा. एग्जाम्पल आपको, अब जितनी बातें हम कर चुके हैं कि ये एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. A great deal of talent is lost in the world for the want of a little courage. This is a sentence, this is a statement. Now you are supposed to expand it by giving examples, by giving more details. So you can see here that if we expand this, we are going to give this very statement a title.
सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमने इस स्टेटमेंट को टाइटल दे दिया सेल्फ कॉन्फिडेंट का, क्योंकि बात हो रही है कि बहुत सारा टैलेंट जो है वो लॉस्ट हो जाए दुनिया में, क्योंकि किसी को थोड़ी सी हिम्मत और करेज नहीं दी जाती। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें इस सेंटेंस को? हम कह सकते हैं नर्वसनेस एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर ऑलमोस्ट एज ग्रेट फॉल्ट्स एज इग्नोरेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है और आप नर्वस रहते हैं तो ये उतना ही डैमेजिंग है जितना कि एरोगेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, देर आर मैनी पीपल हु हैव रियल टैलेंट इन डिफरेंट लाइन्स। डिफरेंट लाइन मीन डिफरेंट areas, different fields. The ability to expand a sentence or a short passage into a large paragraph is essential to be a good writer. Why we need expansion and precis writing or all such sort of stuff? Because a good writer needs these types of things. Okay, when you have the ability to expand something or to shrink something, then you can be a good writer. So all of these topics are one way or the other are making you a good writer that can help you in your academic writing as well as your career. I hope you will have a good understanding of this. If you have any question, in your mind, then you are free to ask in the comment section.